And thank you for that question that you're not asking about the tools because मेरे हिसाब से मैं इतने सारे tools गिन भी नहीं सकता हूँ जितने AI tools घूम रहे हैं मार्केट में। Hmm. बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम मतलब आपको तो सीएम अरे भाई मैं आई केम अक्रॉस अ फ्रैक्शनल सीएमओ एआई टूल। मैंने बोला बस मैं मैंने बोला हाँ ये सही बात है मतलब जो फाउंडर ये खरीदने जा रहा है ना ये फ्रैक्शनल सीएमओ इट्स लाइक ना एक जो एक कहावत है Are you हिंदुस्तानी afraid of that? You will be replaced. भाई आई दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से कि जो फाउंडर या जो भी कंपनी एआई सीएमओ खरीदना चाहती है ना वो एआई सीएमओ ही डिजर्व करती है। मैं इसी बात पे उस आर्गुमेंट को खत्म करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको बहुत क्रेजी लगते हैं, रोहित उनमें से एक है। जब मैंने पहली बार इनकी प्रोफाइल देखी थी तो मुझे सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस किया वो ये था, थोड़ा सैस थोड़ा मैजिक। ही हैव क्रेजीली बिल्ड हिज प्रोफाइल एंड हिज प्रेजेंस इन दिस एंटायर सैस इंडस्ट्री। बहुत सारे कम्युनिटी मीट में गए हुए हैं, स्पीकर रह चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज की मार्केटिंग लीड कर चुके हैं, मोर देन अ डेकेड एक्सपीरियंस है, खुद की कम्युनिटी रन किए हैं, पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जीते, बहुत बेहतरीन थॉट लीडर है सैस के, और पता नहीं क्या 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 करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है ये कोई पॉडकास्ट नहीं है, इसे आप ये समझो कि एक ऐसा पर्सन जो किसी को एडमायर करता हो या देखता हो और उनसे वो सारी बातें सीख लेना चाहता है एक ही घंटे में। मैंने वो सारे सवाल पूछे जो मुझे जानना था और ये कन्वर्सेशन एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लेके जाती है हर वो चीज के डेप्थ में जो आपको जाननी चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग हो, सैस हो, स्टार्टअप बिल्ड करना हो, एआई हो या फिर फंडिंग हो, सब कुछ इस पॉडकास्ट में है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़े मैजिक और थोड़े सैस में, ये पॉडकास्ट बेस्ट है रोहित के साथ। Okay, welcome Rohit. थैंक्स सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड या ग्लैड टू बी हियर। Yes, let's start with this tagline. थोड़ा sass, थोड़ा magic. कहाँ से, क्यों और क्या है ये? Yeah, so okay, the process of doing anything new is specifically like the first time you write a blog or the first time you write your ad is you go to multiple places, you see what has worked in the past, and you try to emulate them. I wanted to do the same thing for myself, and then I went to the biggest of LinkedIn influencers, or at least like great LinkedIn profiles that I've seen, the likes of Dave Gradat and people like those, right? When I went there, I was like, okay, and then I wrote like 5 different versions of the headline that I wanted to put up there, and then nothing was really capturing because everything was just about SaaS. Like when you are going on LinkedIn, and my entire career has been SaaS, so when you start to encapsulate all of that, it goes just to be about SaaS. So I was like, nahi yaar, ye to nahi. So this thought came to me like I'm not only about SaaS. There are multiple facets of my personality that I'm not putting in here. So what is it about me? And then it just came as a thought. क्या ठीक है मतलब ठीक है why take this so formal and seriously, let's just put this which is thoda sa thoda magic because I think there was a similar named movie at that time that was I was listening to a song while I was thinking about this and like, यही तो है, this is what it is, यही करते हैं, and then I put it up there and then it became an instant hit. In fact, I tried to change it a couple of times in the past 6 7 years, and people have texted me in my DM, "Hey, why did you change that tagline? कितना मतलब I have never seen a more brilliant tagline." मतलब भाई 10 सेकंड का thought था वो, but now it's my identity, I guess. At least in on LinkedIn, people remember me by that. तो ठीक है चलेगा, I'm okay with that. Whatever works. I'm a marketer. I am fed by data. So चल रहा है तो अच्छा है, no problem. Perfect, right? I would like to go deep into it, right? Why SaaS? I mean, you have other things to do in life, right? You have been to different places. उसके बारे में हम बात करेंगे और आगे. But SaaS ही क्यों? SaaS ही क्यों? उस अगर मैं अपनी जर्नी को 2 3 पार्ट में 2 3 स्टेजेस में डिवाइड करूं, फर्स्ट इफ आई वुड से दैट इट वाज अ वेरी वेल थॉट आउट डिसीजन जहां पे मैं स्ट्रेटेजिकली अपना टारगेट बना करके करियर बनाया था, ऑल ऑफ दैट इज जस्ट bullshit. I never knew I'll be here, and I'm here because it was all by chance. Um, the first SaaS company that I worked with or worked at was WebEngage. And Hmm. I'll be honest to God, hand to my heart, I did not know what SaaS means before applying to that company. Okay. So that was as clear. I came to WebEngage. I knew what content marketing is. I knew what SEO is because I self-taught myself during the weekends. I only knew SaaS as a definition, but I didn't know what it. In fact, at that time, I had 3 job offers at hand. One was from one of the biggest financial fintechs, yeah, fintech marketplaces like
जैसे Bang Bazaar, Paisa Bazaar types. One of those was there. The other was a very good mobile app company, and the third was WebEngage. I visited all three offices, and I just liked the WebEngage vibe. I was like, यही काम करना है. And during that job, I taught myself what everything about SaaS is. So yes, it was a very unplanned, very serendipitous decision. बहुत किस्मत से मिला था, and I have been very very lucky about that. दूसरा, why did I stay? Because in the past 11 years of doing this, SaaS has reinvented itself every couple of years. So there is always just so much to learn and do. And even today, I do things by my hand. I'm a very, I always want to be an IC. Like I'm that kind of a guy who wants to be an IC. Doesn't matter what level of managerial role that you give me, and I still enjoy all of that. So that's the other thing why I remained here. And the third thing is it's a very lucrative career option, man. Like it pays you really well. It takes care of you, and there is always good people around. There's a level of respect that you just get by being here, that you don't get in other industries. And I'll tell you why I say that with confidence is because for the first 1.5 years I have sold insurance in my life, and I'll tell you, respect in communication in just day-to-day work life, it stands very high up in the ladder for me. So those are the mix of reasons. Perfect. Rohit, when you talk about SaaS reinventing again and again and again, right? And I totally agree with this. Right now, we are seeing so many AI agentic, and you're working right now on an AI agent, right? How this collaboration happening, SaaS or AI? What exactly going on inside that? Yeah, so AI in itself, if you look at it from a foundational technology, right? This kind of a technology shift, and on the risk of sounding like one of those LinkedIn gurus, I'll say, only happens maybe if you're lucky once or twice a generation. It is as big of a technological shift like the internet, that people say, or the computers. I remember my father is was a government servant, so he was in that service. So I remember when computers came to the government, and people who did not want to learn computers, they had to like the government had to hire computer operators. There's this specific role in government offices which is called the computer operator. What it does, what he does is, or he or she does is, they just operate the computer, which basically means babus will do the file work on by their hand, and all of that data entry will go into the system using a computer operator. Now, the government servants were safe, but everybody in that technological shift, which was on the other side in multinational companies and private companies, all of them got phased out. Whoever did not learn the computers way, right? That is why that's my favorite example. That is the same thing that is happening with AI. The only thing is why, because we are in this present, living it, we don't see it happening every day, and that becomes a challenge because that entire why is that a challenge is because time when you're living it moves very slow, right? It's only after say 3-4 years we look at our look in hindsight and like, oh shit, all of that happened in 3 years. That is what is really happening. Why that trust, or why that development, or why do you not see it right away and all you see is noise, is because VCs are people who live in the future. VCs and founders both. See, this is my favorite definition of a founder. A founder lives in the future, and so he lives in the future, and when I say he, it's he and she. I'm sorry for my language, but for someone who lives in the future and lives in the present and is constantly thinking about building that bridge from this present and the future, right? And VCs are the people who can visualize the same dream with them. यही होता है ना. This is what my understanding of a founder and a VC is. अब इस केस में क्या होता है कि when you have this gap, or when you see this future together with a founder, उस केस में तुम फ्यूचर में ऑलरेडी जी रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा ऑडियंस है ना वो प्रेजेंट में जी रहा है. बोला कहाँ, मतलब एआई इज नॉट एबल टू रिप्लेस वर्कफोर्स, राइट? जो 1.5 साल पहले जो लोग बोल रहे थे कि एआई विल रिप्लेस वर्कफोर्स, पीपल डिड नॉट बिलीव इट. Finally, until these MNCs started laying off people and started doing hiring freeze. तो ये वही हो रहा है. मतलब इतना लंबा घुमा फिरा करके मैं कहना ये चाह रहा हूँ, this is a very tectonic shift. The world will see a very sea change in the next 5 years,
where AI will be the new way of working. And all of that हल्ला aside, जो भी ये हल्ला हो रहा है, इसके अलावा there is a lot of truth into it. लेकिन उसके साथ दिक्कत यही है क्योंकि फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी ही इतनी बदल रही है कि वो दुनिया क्या होगी ये बनाने वाले भी नहीं बता सकते, ये झेलने वाले भी नहीं बता सकते, मतलब कोई भी अभी उतने कन्विक्शन से नहीं बता सकता. Everybody is figuring out this journey. What is AI impacting in terms of GTM, right? Because दो तीन चीजें मैं बात करना चाहूंगा. जैसे you also mentioned in couple of your post, and मैं भी जानता हूँ कि HubSpot के founder ने बोला कि SaaS is going to end, right? And Salesforce also come up with a agentic AI agents, and they change the pricing. Again, they hire team, fire team, again they rehire team. All sort of things happening. So in सब में GTM marketing side AI का कैसे रोल प्ले कर रहा है? I mean, I don't want to talk about the tools. जैसे you're also posted couple of AI generated videos. ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेप्थ में क्या हो रहा है, वहां पे क्या चल रहा है, कैसे अब नया मार्केटिंग चल रहा है AI में. And thank you for that question that you're not asking about the tools because मेरे हिसाब से मैं इतने सारे tools गिन भी नहीं सकता हूँ जितने AI tools घूम रहे हैं मार्केट में. बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम मतलब आपको तो सीएम, अरे भाई मैं आई केम अक्रॉस अ फ्रैक्शनल सीएमओ AI टूल. मैंने बोला बस मैंने बोला हाँ ये सही बात है. मतलब जो फाउंडर ये खरीदने जा रहा है ना ये फ्रैक्शनल सीएमओ, इट्स लाइक ना एक जो एक कहावत है हिंदुस्तानी. Are you afraid of that? You will be replaced. भाई that is what I'm going to say कि जो फाउंडर या जो भी कंपनी AI CMO खरीदना चाहती है ना, वो AI CMO ही डिजर्व करती है. मैं इसी बात पे उस आर्गुमेंट को खत्म करूंगा. कमिंग बैक टू कि AI की दुनिया में मार्केटिंग कैसे हो रहा है इज योर क्वेश्चन, राइट? राइट. यार AI की दुनिया में मार्केटिंग करने के लिए अगर मैं फैंसी चीजों को साइड में रख दूं और धरातल पे मतलब एक्चुअल रियलिटी में बात करें तो AI जहां से शुरू हुआ था, अगर मैं पिछले 2-2.5 साल की कहानी अगर मैं प्लॉट करूं तो इट स्टार्टेड, वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट देखा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ यूफोरिया which people in simplistic term also call it height of stupidity, hill of stupidity and so on, and then valley of despair, and then वो साथ में stabilize होने लगता है. तो ये अभी हम लोग कहीं ना हाइट ऑफ स्टुपिडिटी से वैल्यू ऑफ डिस्पेयर के बीच में, जहां पे जो मार्केट है उसको AI टूल्स चाहिए भी, बट वो जो ट्रस्ट है ना वो काफी इरोड हुआ है पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, जहां पे लोग जानते हैं कि AI में पावर है, बट अभी तक उन्होंने बहुत ऐसे सॉल्यूशंस देखे नहीं है कि जो वो वेबसाइट पर प्रॉमिस कर रहे हैं वही वो प्रोडक्ट से इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हैं. जैसे वो रिसेंट जो MIT स्टडी आया ना कि 95% ऑफ पायलट्स AI पायलट्स फेल वगैरह, वो लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं, वो हेडलाइन, मतलब हमारी तो दुनिया की आदत है हेडलाइन पढ़ के आगे बढ़ जाने की, बट अगर उसको डबल क्लिक करते और पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना तो उसमें है कि अबाउट, मतलब ये जो भी उन्होंने स्टडी किया उसमें से 67% पायलट जो प्रोफेशनल रन कंपनीज ने एक्सटर्नल वेंडर्स हायर करके उन टूल्स का पायलट किया वो एक्चुअली सक्सेसफुल है, व्हिच इज 3 out of 4, राइट? बट इंटरनली जो AI टूल चेन बनाने की कोशिश किया है ChatGPT में Anatan का स्क्रिप्ट लिख करके, वो फेल हुआ है. उसके लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि दैट ट्रस्ट ऑन ओवरऑल AI हैज टेकन अ हिट. सो अब इस केस में क्या है ना कि अगर मैं बिल्कुल ही देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो समंदर का जो झाग है वो धीरे धीरे छट रहा है, और अब वो टूल स्टेबलाइज हो रहा है, वो सारे ही कंपनीज एंड टूल्स स्टेबलाइज होंगे जो एक्चुअल बिजनेस वैल्यू जनरेट कर रहे हैं. तो ये मार्केट अब इसका मार्केटिंग पे क्या इम्पैक्ट है कि मार्केटिंग इज गोइंग बैक टू इट्स फंडामेंटल्स, व्हिच इज ऑथेंटिसिटी वर्क्स. ऑथेंटिसिटी कैसे लेकर के आओगे तुम अपने ऑफरिंग में, तुम अपने क्लेम्स में, एंड वो ऑथेंटिसिटी तुम कैसे कम्युनिकेट करोगे और कहाँ कम्युनिकेट करो, इससे बहुत फर्क पड़ेगा. लाइक इफ यू आस्क एनीबडी अराउंड इन माय पीयर सर्कल, इन माय नेटवर्क, और जस्ट एनी मार्केटर एट अ कंपनी मार्केटिंग लेवल, एवरीबडी इज गोइंग बैक टू इवेंट्स. उसका रीजन यही है कि इतना लो बैरियर हो गया है डिजिटल कंटेंट एंड डिजिटल कनेक्शन क्रिएट करने का कि लोग अब उससे परेशान हो गए, एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग बैक टू ऑथेंटिक मीडियम्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल. Yeah, so I'll come back to this event वाला part, right? मैं just एक चीज और जानना चाह रहा था, क्योंकि SaaS जब आया था उसने सॉफ्टवेयर के प्राइसिंग को बहुत हिट किया था.
पहले ट्रेडिशनल जो प्राइसिंग हुआ करते थे, राइट, वन टाइम कॉस्ट दो और पूरा साल भर या 2 साल या 5 साल का, फिर SaaS आया कि नहीं पर मंथ का आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं. नाउ विद द AI, दिस प्राइसिंग आल्सो गेटिंग चेंज बेस्ड ऑन द एजेंट्स, बेस्ड ऑन द ROI, राइट? So do you think that all this AI will replace the way SaaS used to work and AI agents will become a new SaaS? मैं इसमें भी बड़ा फंडामेंटल पे बात करता हूँ यार. देख, मैं जहां पे भी जवाब तुम्हें फैड या ट्रेंड से नहीं मिले ना, वहां पे फंडामेंटल हमेशा तुम्हें जवाब दे देगा. अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे टूथपेस्ट का क्या प्राइस है, ठीक है, या तुम अपने कोलगेट टूथपेस्ट के लिए 100 रुपए क्यों देते हो, उसका दो ही रीजन. इट्स द वैल्यू दैट इज ब्रिंगिंग टू योर लाइफ एंड द ब्रांड दैट यू ट्रस्ट. ठीक है. तो जो प्राइसिंग पहले हुआ करता था सॉफ्टवेयर का, बिकॉज उस समय में वो वैल्यू वो प्रोवाइड करता था. SaaS में क्या हुआ, सेम वैल्यू वो लोअर कॉस्ट पे प्रोवाइड करने लगा. ठीक है. तो SaaS अब लोअर कॉस्ट मुझे लग रहा है, तो मैं दैट बिकेम अ प्राइसिंग एडवांटेज. अब AI के कारण क्या हुआ है कि वो SaaS का भी जनरेशन कॉस्ट बड़ा लो हो गया है, बट इट विल स्टिल बी प्राइस्ड एट द बिजनेस वैल्यू दैट यू प्रोवाइड. ठीक है. एंड द ब्रांड दैट यू आर एबल टू मेक. लेकिन अब क्या होगा कि हर एक बिजनेस अगर ये फिगर आउट कर लेगा कि हाउ टू प्रोवाइड द सेम वैल्यू एट अ लोअर कॉस्ट, द ओनली डिफरेंशिएशन दैट यू विल हैव इज योर ब्रांड एंड द वैल्यू दैट यू प्रोवाइड. अगर वैल्यू सबका बराबर हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट सबका लो हो गया, तो ब्रांड लेवल डिफरेंशिएशन जो बच जाएगा उतना ही बचेगा. एंड हेंस द प्राइस विल बी कैटेगरिकली लो फ्रॉम द SaaS era, but it will again stabilize across the vendors. So it will just be a new era of pricing because of a differentiated way of generating it at a low cost. इतना ही होने वाला है. That is where it will all stabilize. Yeah, and it's a very good insight, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं अब SaaS खत्म होगा, ये होगा वो होगा, एजेंट्स आ जाएंगे. एंड आई बिलीव सेम वे कि वो ROI तो हमेशा से था, वो जस्ट उतना लोग बात नहीं कर रहे थे, अब ज्यादा बात कर रहे हैं उस ROI के बारे में कि यार इतना पे करोगे तो इतना आपको मिलने वाला है. लेट्स मूव. I'll clarify कि SaaS खत्म होने वाली बात में दम कहाँ है. SaaS खत्म होने वाली बात में दम वहां है ना, where you are just doing a small thing and charging like $20 a month, $100 a month like for that particular thing. वो जो छोटे जो SaaS है ना, वो when they bleed the budget by 100 cuts, those will be replaced because that is basically an N8N workflow wrapped in a product given to you at $20 a month. तो वो सारी चीजें खत्म होगी. बट क्या Salesforce खत्म हो जाएगा या क्या HubSpot खत्म हो जाएगा? नहीं. हाँ, would they exist in the same way that they are right now? Absolutely not. But can you actually replace a CRM by a bunch of AI automated flows? Absolutely not. That's not going to happen. And that is a strong proof that recently SAP and Oracle also signed some 50 million or 30 million deal with a chat GPT OpenAI, ताकि वो उसमें enable कर सके. And that's itself a proof that even this kind of big company gonna shift something, but not entirely कि वो पूरा change ही हो जा रहा है, ERP change हो जा रहा है या CRM change हो जा रहा है. That's not going to सही happen. बात है. Right. Okay, so when you talk about events, when you talk about building trust, right? आप पिछले एक साल में तो you have done crazy shit. I mean, SaaSCon, stand-up भी किया आपने, right? You also went to Hindi book publications and all sort of things, right? When you are on stage and when you're looking from stage, right? What's going on in your head? वो कैसा रहता है? क्योंकि हम सब अभी तक जितने भी लोग हैं, मुझे जहाँ तक पता है, apart from some big shot जिन्होंने HubSpot and all इस तरीके के लेवल के जो founders हैं जिन्होंने बड़ा एग्जिट लिया हो, उनको छोड़ के हाउ यू फील दैट व्हेन यू आर ऑन स्टेज एंड व्हेन पीपल आस्क सम माइट बी कॉमन क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस, व्हाट्स गोइंग इन योर हेड? क्या चल रहा होता है उस समय? क्या लगता है कि यार इतना स्पेशल तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ या मैंने बहुत कुछ फोड़ दिया है? नहीं, यू आर करेक्ट. वो दैट इज मोस्टली एक जो कहते हैं ना इम्पोस्टर सिंड्रोम जो होता है कि यार इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या कहते हैं हिंदी में, अगर मैं बेसिक एकदम आसान भाषा में समझाऊं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है कि तुमने काम किया है लाइफ में, बट तुमने इनफ काम नहीं किया है कि तुमने इतने पैटर्न्स देखे हो कि तुम्हें अपने काम पे भरोसा हो. नहीं, उसी को इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं. तुम्हें डर लगता है कि मैं किस दिन कोई तो उठेगा और बोल देगा नहीं नहीं ये तो फ्रॉड है, इसको नहीं आता है. एंड क्योंकि तुम अपने आप पे इतना हार्शली जज करते हो कि तुम बोलोगे हाँ मुझे तो नहीं आता है, तो वहां पे तुम धाराशायी हो जाते हो. उसी को इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं. तो इसका दो रीजन है कि कैसे उस चीज की भरपाई होती है. अगर तुमने इनफ बार अपने तरीके से काम करके सक्सेस पा लिया है, एंड सक्सेस इज नॉट मेजर्ड जस्ट बाय मनी,
जस्ट कि हाँ ये चलता है, ये काम करता है, मतलब इट्स विद एवरीथिंग ना। 10 बार मोटरसाइकिल निकाल करके चला लोगे तो लगेगा कि हाँ चलाना आता है। दैट इज द ओनली थिंग। इट्स जस्ट दैट इन SaaS मार्केटिंग वो साइकिल स्लो होता है, तो तुम्हें एक महीने में 10 बार नहीं कर सकते हो, यू नीड टू स्पेंड लाइक 4-5 years टू डू दिस। तो अगर वो कर लोगे तो इम्पोस्टर सिंड्रोम खत्म हो जाता है। सेकंड जो चीज होती है ना, कि सेल्फ अवेयर रहो। तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या पता है और तुम्हें क्या नहीं पता है। तो अगर कोई उठ करके कुछ पूछ रहा है, जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आके बोलते हैं कि अरे ये वाला ऐप, मोबाइल ऐप जो है ये, जैसे आई थिंक हम सबका एक फेवरेट ऐप है जिसमें हम बोलते हैं कि यार उतना वैल्यूएशन है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, राइट? कहीं वो लोगों को फ्रॉड तो नहीं बना रहा है उसमें। हर एक लोग का कोई एक ऐसा सवाल होता है कि ये बिजनेस तो मुझे लगता है, ये स्टार्टअप तो फ्रॉड है। तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि भाई मुझे एक ही चीज पता है, वो है SaaS। ठीक है, SaaS के बारे में आप पूछोगे तो मैं शायद एक एजुकेटेड ओपिनियन दे सकूं, बट आप मेरे पास लेकर के आ रहे हो एक फिनटेक ऐप जिसपे आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हो। अब मैं इतना ज्ञानी तो हूं नहीं जो मैं आपको दे उस पर ओपिनियन दे सकूं। तो ये इस आंसर में दो चीजें हैं। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हें क्या पता है, और दूसरा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हें क्या नहीं पता है। और अगर तुम उन चीजों के अराउंड रहते हो जो तुम्हें पता है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी रहेगा उस चीज पे। एंड वो जो दैट चांसेस ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट किए तो फ्रॉड है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे कोई मुझसे आकर के पूछता है कि रोहित ये $multi-million का बजट है मेरा, मुझे ऐड चलाना है, मुझे क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, राइट? मैंने कभी $multi-million बजट हैंडल ही नहीं किया है एड्स में, तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ कि भाई आई हैव ऑलवेज हैड हेल्प। मेरे पास टीम में कोई ना कोई बंदा रहा है जिसने किया है। हाँ, स्ट्रेटेजिकली मुझे पता है कि क्या करते हैं, टैक्टिकली आई हैव नो आइडिया। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को छुपाने में। मैं तुम्हारे रिकॉर्डेड पॉडकास्ट पे ये बात बोल रहा हूँ, आई एम श्योर ये ऑनलाइन जाएगी, लोग देखेंगे, Of अच्छा course. 11 साल इसने बिता लिए और इसने आज तक लार्ज स्केल बजट हैंडल नहीं किया, नहीं किया। एंड यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद दैट फैक्ट। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि अपने आप से कंफर्टेबल हो जाओ, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, एंड उसी चीजों के अराउंड रहो एंड बी ऑनेस्ट, तो हैंडल हो जाता है। जब तुम इतने ऑनेस्ट हो जाते हो ना, तो तुम्हें फेल होने का डर नहीं होता है। तुम्हें लगता है हाँ ठीक है, फेलियर इज अनदर डेटा पॉइंट इन योर जर्नी, कि ये नहीं चला। दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम माई कॉमेडी एक्सपीरियंस, जहां मुझे फेल होने की आदत बहुत जल्दी लग गई कि 10 जोक सुनाया, उसमें से 2 नहीं चले या 8 नहीं चले, बट 2 तो चले। अब नए 8 लिख करके ये 2 ऐड करके मेरे पास फिर अगले सेट के लिए 10 जोक हैं। तो वो एक्सपीरियंस वहां से आया है, एंड नाउ इट हैज जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ वेयर फेलियर इज जस्ट अनदर डेटा पॉइंट, इट्स ओके। Rohit, when we talk about this, a company which is coming up, launching, right? Because you always went to 0 to 1 journey. मतलब मैंने जितना तक देखा है आपका पैटर्न, आप हमेशा 0 to 1 पे रहे हैं। जैसे वो 1 होता है, आप वहां से सोचते हैं कि एक और जीरो पकड़ा जाए, right? अब पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि फाउंडर सोचता है कि इन्वेस्टर सोचता है, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो पैटर्न जरूर है। कोई ना कोई तो सोच रहा है। कोई तो सोच रहा है, अब वो कौन है उसका पता लगने पे फिर हम उस पर बात करेंगे, बट हाँ ऐसा सोच रहे हैं लोग। ठीक है, तो अभी अगर किसी को कोई SaaS लॉन्च करना है, ठीक है, या लेट्स से AI एजेंट लॉन्च करना है, तो क्या क्या स्टेप उसे फॉलो करना चाहिए और क्या क्या उसे करना चाहिए राइट नाउ एज पर यू? दो क्लियर डिस्टिंक्शंस हैं इसमें सोचने के। एक तो अगर तुम देखो, कहीं कोई भी कंपनी बनाने के लिए ना एक कोर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कोई तो इनोवेशन होना चाहिए। अब वो इनोवेशन जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग के थ्रू ही आए, वो इनोवेशन बहुत तरीके से आ सकता है। अगर तुम सोचोगे कि इनोवेशन उसमें क्या है, तो अभी जैसे ध्रुव राठी ने वो लॉन्च किया ना, क्या बोलते हैं, AI फिएस्टा, लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं उसका कि यार क्या लॉन्च कर दिया है, तो AI रैपर है, तो कुछ किसी काम का नहीं है। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि उसमें इनोवेशन क्या है, उसमें बिजनेस मॉडल इनोवेशन है। वो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ लोगों को AI का एक्सेस दे रहा है एट अ वेरी लो प्राइस। Is that a big enough innovation to make a $1 billion business? No. But is that a business innovation? For sure. उसने डिस्ट्रीब्यूशन से अपना बिजनेस इनोवेट किया है, ठीक है? तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास क्या इनोवेशन है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर तुम इतना डीप टेक इनोवेशन नहीं कर सकते हो एंड यू हैव लाइक बेसिक AI कोडिंग स्किल्स या वाइब कोडिंग स्किल्स आजकल लोग बोल रहे हैं, या तुम्हारे पास एक को फाउंडर है, बहुत ज्यादा बड़ी इंजीनियरिंग टीम नहीं है, यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर वर्टिकल SaaS। वर्टिकल SaaS में अगर तुम एक बेयर मिनिमम, एंड यू शुड बिल्ड विथ वन ऑफ द बिग कंपनीज, जहां पे वहां जाओ, वहां का वर्कफ्लो समझो, और वहां का वर्कफ्लो इतना डीपली समझो कि बड़ी कंपनीज के पास उतना टाइम ही नहीं रहे कि अरे आप
अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई इंडस्ट्री है जहां पे मान लो 5,000 ही कंपनीज हैं जो वैसा काम करती हैं, ठीक है। अगर तुम उस इंडस्ट्री में घुस जाते हो एंड तुम, क्योंकि वहां पे कोई भी सर्व नहीं कर रहा है, नन ऑफ द बिगर गाइज इज सर्विंग दोस प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, हर एक बिजनेस में वर्कफ्लो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा बंदा उसको सॉल्व नहीं कर रहा है तो तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, build that workflow so deep that you become the king of those 5,000 businesses. 5,000 businesses paying $100,000 per year to you, it's a 50 million business. Right? तो आइदर वो तरीका है, या अलग जो तरीका है वो जैसे पेटाव्यू कर रहा है, basically the biggest moat that we had or the biggest strength that we had was solid AI engineers. Like जो मेरा co-founder, जो sorry मेरा founder CEO जो है, he was the head of data analytics at ZoomInfo, ठीक है। he has built multiple martech products, in fact 5 या 6 स्टार्टअप्स कर चुका है वो martech में, like multiple acquisitions, ZoomInfo का acquisition था, and then we had very capable 12 14 15 years of experience with data architects, back-end architects, very good senior developers. तो हमारे पास टेक मोड था, so we हमारा शुरू से this vision was there कि we need to solve a very hard technical problem using AI, because उसके नीचे इनको मजा ही नहीं आता, भले हम पैसे बना लेते किसी और तरीके से थ्रू GTM वगैरह, बट उनका वैलिडेशन नहीं आता कि यार नहीं, वी आर नॉट सॉल्विंग अ हार्ड इनफ प्रॉब्लम। तो उससे क्या होगा, व्हेन यू आर सॉल्विंग अ हार्ड इनफ प्रॉब्लम यूजिंग टेक, तो तुम्हारा वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देन GTM हैज टू बी लेयर्ड अपॉन दैट टू क्रिएट दैट डिस्ट्रीब्यूशन। बट क्योंकि तुम्हारा कोर डिफरेंशिएशन बहुत मजबूत है, तुम्हें और बाकी चीजों पे उतना ज्यादा डिफरेंशिएशन लाने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट दैट डिफरेंशिएशन रियली वेल टू द बिगर ऑडियंस एंड तुम्हारा प्रोडक्ट चल जाएगा, ठीक है। तो आइदर डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा मोट है, या वर्टिकल वेरी नीश डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर तुम्हारा मोट है, या तुम्हारा टेक्निकल मोट है। अब इस केस में तुम्हारे हाथ में जो है उस हिसाब से दिस इज अ फ्रेमवर्क टू डिसाइड, यू गो अहेड एंड डिसाइड। when you recently mentioned, I mean अभी जब आपने दोपराटी का मेंशन किया, and I also believe same way कि यार वो पॉलिटिक्स जा सकता था, स्कूल खोल सकता था, ना किसी और की तरह वो अपना कोर्सेस ही बेचता रह जाता। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दिस कि डिस्ट्रीब्यूशन वाज द पावर जो उसने उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। बहुत भयंकर डिस्ट्रीब्यूशन था, उसने यूटिलाइज किया। यहाँ पे एक वापस क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट लेड ग्रोथ मार्केट में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, या इट्स ऑल अबाउट सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग? मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट लेड ग्रोथ आज के जमाने में इवन ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है एज कंपेयर टू व्हेन इट स्टार्टेड, because that mode of building products has gone down so much and the speed of building products has gone up so much that people are building products, launching into the world. अभी देखो ना तुम्हारे आसपास कर्सर हो गया, रेप्लीट हो गया, लवेबल हो गया, everybody is it's literally product led growth. There's nothing else. Why that is? Because I'll tell you there are multiple factors to it. एक तो बिल्डिंग आसान है, but I'll not say because I'm building it right now it's not as easy as the next TechCrunch article will make you believe, right? It is difficult. It is difficult to build. Still, a very differentiated product is difficult to build. बट उसके बावजूद दिक्कत ये है, और दिक्कत तो नहीं बोलूंगा, गोल ये है प्रोडक्ट लेड ग्रोथ का, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ एआई, क्योंकि इंफ्रा इतना जल्दी चेंज हो रहा है, it's very pertinent to put it in front of people just to test it out live and build in the background. Because इतने ज्यादा dynamic environment में, if you wait for the perfect time for it to be ready and then launch it and then market it and then get it through sales, उस समय तक शायद तुम्हें प्रोडक्ट फिर से दोबारा बिल्ड करना पड़ जाए या बदलना पड़ जाए। So that is why I think PLG अभी के समय में पहले के समय से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। That's true. That's true. Rohit, you are also, you know, VC side से भी आप कर रहे हो, आप हो वहाँ पे, right? If you have to invest in a company, any company, ठीक है, what sort of company you will invest? यार पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूँ, ठीक है। Of course, that we know. हाँ, मतलब मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू पेंट अ रॉन्ग पिक्चर, है ना। ठीक है। दूसरे पे कि अगर मेरे पास मेरे पैसे हों और मुझे उसको इन्वेस्ट करना हो अभी करंट सिनेरियो में, अभी या आई थिंक द ओनली good pattern that I have seen across these years is the answer that I gave you before is ये business का moat क्या है, like where is this business being defensible,
कि ये कहाँ बच सकता है, किस कोने में, और क्या कितना बड़ा कोना है वो, right? So I think I have been for the past 2 years very bullish about vertical SaaS, because I think with the ease of building new products and entirely new software becoming easy and more approachable, I think ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल SaaS इस दुनिया में आएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल SaaS ऐसे वर्टिकल्स में पहुंचेगा जहां पहले सॉफ्टवेयर नहीं पहुंचा है, एंड इट जस्ट नीड्स अ ऑब्जर्वेंट आई जो उन अपॉर्चुनिटीज को देखे और उन अपॉर्चुनिटीज के लिए बिल्ड करे. सो दैट इज व्हाट आई एम पर्सनली बुलिश अबाउट. ठीक है. सो जब अपने वर्टिकल सेल्स की बात करते हैं, इट कुड बी इन एनी सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, राइट? एक छोटे, लेट्स से देयर आर सॉल्यूशन व्हिच इज ओनली टेकिंग केयर ऑफ companies पे area which have 5 employees, or maybe there are industry which have मैं companies where एग्जांपल देता हूँ ना मेरी हाँ लास्ट कंपनी का, बहुत ही हाँ वैकी एग्जांपल है. फ्लीट पांडा जो है, जो मेरी लास्ट कंपनी थी, इनफैक्ट पवन इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड, वी चैट एवरी अदर वीक. It used to serve petroleum distributors in the US, right? पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर्स वो लोग होते हैं जो टर्मिनल से पेट्रोल उठाते हैं. सो रिफाइन होकर के जाता है ना. अभी आजकल तो आप लोग न्यूज में सुन रहे होगे इतना ज्यादा पेट्रोल रिफाइंड ऑयल एंड क्रूड ऑयल है, ये वो बेसिकली रिफाइंड ऑयल होकर के एक टर्मिनल पे जाता है, ठीक है? टर्मिनल से उस पेट्रोल को पहुंचना है अलग अलग जगह पे, यानी एयरपोर्ट पे पहुंचना है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पहुंचना है, पेट्रोल पंप्स पे पहुंचना है. तो पेट्रोल पंप्स पे पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर्स. इंडिया में वो चीज आपको इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि इंडिया में जो ऑयल कंपनीज है वही डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं, उन्हीं के ट्रक्स होते हैं, उन्हीं के टैंकर्स होते हैं, इसलिए आपको बीपी के टैंकर्स दिखते होंगे, एचपीसीएल के टैंकर्स दिखते होंगे. यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में ये पूरा लेयर जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है? अब आप खुद ही इमेजिन करो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वो भी पेट्रोलियम स्पेसिफिक कितने ही हो सकते हैं, वो भी यूएस स्पेसिफिक. बट फ्लीट पांडा उस इंडस्ट्री में बनता है, उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, एंड दे आर मेकिंग अ वेरी हेल्दी रेवेन्यू विद अ वेरी हेल्दी मार्जिन, ठीक है? तो आप बैठे बैठे सोच भी नहीं सकते हो द काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट आर अवेलेबल. इट कैन ओनली कम अप विद रिसर्च एंड विद स्पेंडिंग टाइम इन दोज नीशेस एंड कम्युनिटीज एंड सब कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड जहां पे आप ये बिल्ड करना चाहते हो. ये पूछना चाहूंगा कि जब आप बात करते हो इवेंट्स की, राइट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स एंड यू बीन पार्ट ऑफ मल्टीपल इवेंट्स लाइक SaaSCon एंड अदर इवेंट्स वेयर यू पार्टिसिपेट, what is one thing which you feel like there are company which is doing wrong while being in this kind of event? I mean, everyone is either trying to find a lead or maybe investor or something, right? What should be the approach of people who are participating in this kind of event? Lead, okay, the most risky thing that you can do in these events is not being risky enough, because इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा लोग हैं, सब लोग एक ही तरह की चीज कर रहे हैं, ठीक है? कोई आईपॉड्स एयरपॉड्स बांट रहा है, कोई मोजे बांट रहा है, कोई कुछ, मतलब तुम, आई एम श्योर हम में से कोई भी ऐसे इवेंट्स में गया होगा और वहां से कितनी चीजें उठाई होंगी और हमें याद भी नहीं है कि किससे हमने क्या उठाया, ठीक है? लोग बस वो झोला लेकर के लपेटने में लगे रहते हैं, ठीक है? तो वो जो लोग उस चीज से मेजर कर रहे हैं ना कि हमारे बूथ पे 500 लोग आए, ठीक है? दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. तो what can you really do there is having those meaningful conversations. मतलब वो भले कम ही करो आप, राइट? तो क्या होता है, आइदर जो मैंने बहुत सारी जो गलतियां होते देखी हैं, आइदर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैम्फलेट बना देंगे लोग वन पेजर कि अब उसको पढ़ने के लिए तुम्हें बैठ करके उतने ध्यान से बैठना पड़ता. that abstraction and simplification of your message that sticks to people in say a 10-second window that you have, because उससे ज्यादा विंडो नहीं है आपके पास. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एयरपोर्ट्स नहीं देने चाहिए, आपको मोजे नहीं बांटने चाहिए, आपको प्लश टॉयज नहीं देने चाहिए. आपको देने चाहिए बिकॉज आपके यहाँ भीड़ नहीं आएगी. बट सिर्फ वही दे करके बिजनेस कार्ड कलेक्ट करके खुश हो जाने से कुछ नहीं होगा. नोबडी इज गोना रिमेंबर यू. सो दैट फोकस ऑन मैसेजिंग that somebody comes to, like what is that will stick with them, right? पहली एक चीज, या एक तो ये चीज होगी. बट द अदर थिंग इज द अदर साइड इफेक्ट और द अदर थिंग दैट पीपल काउंटर, जो लोग सोच सकते हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा नहीं है जो मैं 10 सेकंड में समझा सकूं, तो मैं क्या करूं उस इवेंट में जो लोग मुझे याद रखें. तो उसमें जो एक चीज मुझे काम आई है ना, जो मुझे लगता है बहुत कम लोग करते हैं, इज गिव देम समथिंग दैट दे कैन टेक बैक टू देयर होम्स and give it to their family members.
बिकॉज क्या होता है कि ऐसे इवेंट्स में ये लोग 2-3 दिन अपने परिवार से दूर हैं, ठीक है, most of them will end up buying a toy for their kid or their grandkid or something for their wife back home or something for their parents back home from their airport stores because इनके पास टाइम ही नहीं है शहर से जाके खरीदने का। तो हमने क्या किया था फ्लीट पैंडा में स्केच बुक्स प्रिंट करवाए थे पैंडा थीम एंड विद क्रेयॉन्स एंड वी गेव देम एज अ गुडी बैग। तो वो ले जाकर के वो अपने बच्चे को दे दिया उन्होंने, तो वो रोज जब पैंडा की ड्राइंग कर रहा है तो उनको याद आ रहा है अच्छा फ्लीट पैंडा नाम की एक कंपनी तो है। वो चीज वो जो थॉट प्रोसेस है ना वेयर यू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर बियॉन्ड अ विजिटिंग कार्ड एंड बियॉन्ड द डेजिग्नेशन दैट दे होल्ड, उसकी बहुत कमी लगती है मुझे। How you choose any company for an investor as a for doing the matchmaking with the investors? क्या क्या देखते हो, क्या क्या करते हो? अगर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यार इन्वेस्टमेंट लेने का ना, बिकॉज आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स, तो उसमें फाउंडर प्रोफाइल मैटर्स। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि फाउंडर प्रोफाइल का कोई मतलब नहीं है, बट ये ऐसी चीज है जैसे आईएम में इंटरव्यू देने जाओगे तो देर आर मल्टीपल थिंग्स। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कैट में 99.9 आ गया तो तुम्हें आईएम अहमदाबाद मिल ही जाएगा, है ना। उसके अलावा तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस का पॉइंट्स मिलते हैं, तुम्हारे प्रोफाइल का पॉइंट्स मिलते हैं, तुम किस कॉलेज से अंडर ग्रेड किया तुमने उसका पॉइंट मिलता है, किस हिसाब से तुम्हारा जीडी गया है, किस हिसाब से इंटरव्यू गया है, उस सो सिमिलर रूब्रिक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ठीक है। अब उसमें मैं बोलूं तो ये है कि जिस टेक्नोलॉजी पे तुम बिल्ड कर रहे हो, जैसे कुछ दिन पहले वेब3 था, अब एआई है, उससे फर्क पड़ता है। क्या तुम्हारा प्रूवन एक्सपर्टीज है इस पर्टिकुलर वर्टिकल में जिसमें तुम बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। क्या तुम उतने साल आइदर पहले कंपनी बना चुके हो या तुम उतने साल उस इंडस्ट्री उस वर्टिकल में रहे हो ताकि उस चीज को तुम समझ सको। अगर नहीं रहे हो तो क्या बैकिंग है, हैव यू, क्या तुम 3 बड़े कस्टमर या 5 बड़े कस्टमर लेकर के आ सके हो विदाउट बिफोर यू गोइंग फॉर फंडिंग राउंड, ठीक है। वो चीज है। दूसरे बात आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे एक तो वो मोट वाली चीज जो मैंने बताई, व्हाट इज डिफेंसिबल इन योर प्रोडक्ट, एंड दैट यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर आंसर कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, वो टेक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी हैव अ वेरी क्लियर आंसर। अगर नहीं है दैट बेसिकली मींस यू डोंट नो इट, तुम बंडलबाजी कर रहे हो, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि ये दोनों चीज का जो कॉम्बिनेशन है, what is the momentum that is bringing to your customer, sorry, to your product. So for example, if you are say a $10,000 per year ka product, है ना, and if you are able to get 20 customers in 2 months and if you are able to get 20 customers in 6 months, दोनों के फंडिंग राउंड में जमीन आसमान का अंतर होगा। So that momentum that you can drive and you can actually show traction in the market, that is in itself a individual factor on its own. तो टीम प्रोफाइल, प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज प्लस मोड एंड द ट्रैक्शन दैट यू कैन शो। अगर बिल्कुल ही आसान भाषा में डिस्टिल करके आंसर दूं तो ये आंसर है। किस लेवल पे जाना चाहिए? आई मीन देयर आर बिकॉज ऑफ एआई, हर कोई एआई एजेंट बना रहा है एंड वी हैव रिसेंटली सीन दैट पीपल आर गेटिंग फंडिंग एट आइडिया स्टेज पे ही मिल जा रहा है, सीड राउंड, प्री सीड मिल जा रहा है, राइट। अभी रिसेंटली आई गेस कोई तो कंपनी थी जो दे शट डाउन देयर बिजनेसेस, दे वर आल्सो डूइंग सम एआई एजेंटिक फॉर सीआरएम ऑटोमेशन का। आई गेस जीरोधा के मैंने भी इन्वेस्ट किया था उसमें, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, या बट या। तो किस लेवल पे जाना चाहिए फंडिंग के लिए अभी बिकॉज ऑफ एआई आई एम टॉकिंग अबाउट? देखो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं एंड अलग अलग तरह से वो लोग अपना थीसिस लिखते हैं इन्वेस्टमेंट का। बट अगर तुम्हें एक जवाब चाहिए किस लेवल पे जाना चाहिए, तो अभी जो मैंने तुम्हें चेकलिस्ट बताई, ठीक है, उसमें से तुम अगर बैठ के भरोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल के लिए जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट नहीं है, जो तुमने बोला आइडिया स्टेज पे ना, तो क्या तुम्हारी टीम, जैसे मेरी कंपनी में है थोड़ी बहुत फंडिंग, जैसे कुला में हमने उठाया था 15 मिलियन सीड में, ठीक है। अब ये सब चीजें कब होती हैं? जब तुम्हारे पास टीम इतनी प्रूवन है कि इन्वेस्टर क्या सोच के देता है कि हाँ इनको पैसे दे दो, ये कुछ तो बना लेंगे, ठीक है, इनके आइडिया में दम लग रहा है। बिकॉज देख इन्वेस्टर्स को भी पता रहता है कि जब जो आइडिया स्टेज पे जो तुम लेके जा रहे हो ना, जब बनाने जाओगे एग्जैक्टली तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी 20, 30, 40% deviation from the plan. So they take a bet on the founder and the team कि क्या ये प्रूवन फाउंडर, ये प्रूवन टीम है, इज द स्पेस बिग इनफ
that even if they start faltering and create the 50% 60% of the vision that they are sharing, it is a big enough product. क्योंकि इन्वेस्टर कभी ये नहीं देखता है कि उसका पैसा वापस आएगा कि नहीं, वो हर एक कंपनी से ये देखता है कि क्या ये मेरा 20 गुना पैसा वापस करेगा कि नहीं, और ऐसे वो 20 बेट्स खेलता है और उसमें से एक या दो सक्सेसफुल हो जाए तो उसको 40x रिटर्न मिल जाता है। फाउंडर का सोचना क्या होता है कि मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू थिंक। अगर वो नहीं सोचोगे तो तुम सर्वाइव नहीं करोगे। इन्वेस्टर ये नहीं सोचता है, इन्वेस्टर ये सोचता है कि कौन सी कंपनी मुझे 20x रिटर्न देगी, उसको 2x 3x से कोई मतलब नहीं। दे आर नॉट प्लेइंग अ 2x 3x गेम। अगर उनको 2x 3x खेलना होता तो वो S&P 500 में पैसे डाल करके भूल जाते। दे आर नॉट प्लेइंग दैट गेम। राइट, तो वो समझना जरूरी है। परफेक्ट रोहित, बिकॉज यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स राइट, स्टैंड अप कॉमेडी, ये वो बहुत सारी चीजें। कभी ऐसा होता है कि स्टैंड अप कॉमेडी वाला रोहित बाहर आ जाता है क्लाइंट मीटिंग में और जोक मार दिया ऐसा, हाउ यू मैनेज दिस? आई डोंट कंपार्टमेंटलाइज। मैं बता रहा हूँ कि आज तुम मिले हो मुझसे पहले इसमें इंटरेक्शन में, पहले भी तुमने मुझसे लिंक्डइन पे बात की है, पहले हमने एक दो कॉन्वर्सेशंस की एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैं बेट कर सकता हूँ कि आज जितने भी लोग इसको देखने जा रहे हैं वो मुझे कहीं भी मिलेंगे, मैं यही मिलूंगा, मैं यही हूँ। एंड दिस गाय, मैं कभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहता, मैं कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहता, कभी मैं वैसी चीजें, मतलब इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा सेस थोड़ा मैजिक वाला जो आंसर था, बिकॉज आई एम ऑलवेज दिस गाय। मेरे अंदर हमेशा सैस के एग्जांपल्स मिलेंगे, मेरे अंदर हमेशा कॉमेडी के एग्जांपल्स मिलेंगे, सो आई डोंट रियली कंपार्टमेंटलाइज। इनफैक्ट the challenge with creative pursuits is you cannot compartmentalize। तुम अलग अलग ऐसे नहीं बंद कर सकते कि इस कमरे में किताबें बंद हैं, इस कमरे में जोक्स बंद हैं, इस कमरे में डेमो बंद है। इट हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दैट। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जिस हिसाब से मैं बातें कर सकता हूँ, जिस हिसाब से मैं एक कॉन्वर्सेशन ड्राइव कर सकता हूँ, दैट वो आउटकम है मेरे इन सब चीजों का, विच इज लिटरेचर, विच इज कॉमेडी, विच इज knowing deeply about the industry and all of that, so that I don't even want to compartmentalize। That's true, and हाँ, this is और अगर मैं जवाब दूं तो हाँ, ये बहुत बार हुआ है कि जहाँ पे मैंने डेमोज में कुछ ज्यादा ही, मतलब इनफैक्ट मेरा फाउंडर पीछे से स्लैक करता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, मतलब हाँ, आई टेक फीडबैक टेकन। तो ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मुझे इवेंट में लोग मिलते हैं, तो इवेंट्स में ना मैं दो ही तरीके से होता हूँ। आइदर मैं चुपचाप कोने में बैठा रहूंगा एंड मैं मतलब गया, टॉक दिया, फिर आकर के वापस बैठ गया, सबसे हाँ कॉर्डियली हाथ मिलाया, सर हिलाया, चला आया, या मैं बिल्कुल ही ऐसा होता हूँ कि हाँ आओ, कुछ आए हो तो कुछ सुन के जाओगे, दैट इज द काइंड ऑफ ये। तो कई बार मुझे जो जिन लोगों ने दूसरे रूप में देखा है, मतलब रोहित आज तो आपसे मिलकर मजा आ गया, उस दिन मैं आपसे मिला था आप तो बिल्कुल ही शांत बैठे थे। मैंने, क्योंकि मैं शांत बैठता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा मुंह खुलेगा तो कुछ ना कुछ अजीब ही निकलेगा। सो रादर कि चुप रहो, बिकॉज करियर प्यारा है, मंडे को नौकरी पे जाना है, मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि यार उधर से कुछ और ही नोटिस आ जाए, तो उससे अच्छा चुपचाप अपना आए हो, टॉक दो, निकलो। बट हाँ, मैं रियल लाइफ में मैं जब भी बोलता हूँ मैं यही बोलता हूँ, या तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब मुझसे मत बोलो, इट्स ओके। तो वो कहानी है मेरी। दैट इज व्हाई आई डोंट नीड टू कंपार्टमेंटलाइज। मेरा चल जाता है, मिला जुला करके खेल चल जाता है। भाई आई रिकॉल वन मोमेंट, कुछ तो था, मैंने कुछ तो आपको मैसेज किया था एंड सैसकॉन को लेके कुछ तो था, ठीक है, एंड मैंने बोला था कि आई विल बी देयर, डू लेट मी I remember that reply। एंड यू सेड टिकट करवा दे। लाइक ओह ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मतलब आपको किसी को आपने कुछ ऐसा गलत बोल दिया हो और आपको बाद में लगा हो कि अरे नहीं यार उसको तो ये नहीं बोलना चाहिए था, एंड देन यू रीच आउट हाँ टू हाँ, दैट मैं गाय? अरे बहुत बार ऐसा हुआ है। इनफैक्ट एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे एक वो इवेंट, शायद इवेंट टीम में सीनियर कोई था या फाउंडिंग टीम में था, कोई तो था। ही टेक्स्टेड कि रोहित व्हाई डोंट यू कम टू दिस इवेंट, एंड ये मैंने हाँ ठीक है बताओ लिंक क्या है, एंड द टिकट वाज अराउंड से 3000 और समथिंग। इट्स नॉट दैट, मतलब ठीक है 3000, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ज्यादा है या कम है, मैंने बस उसको ये लिखा, मतलब व्हाई वुड आई पे 3000 टू मीट माय ओन फ्रेंड्स। तो ट्रू दैट। so, मैंने ऐसे दिए हैं जवाब लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। सी आफ्टर अ व्हाइल देखो क्या होता है ना, खुले
खुले रहने से क्या होता है, when you are very opinionated and when you wear your opinion on your sleeves और ऐसे खुले में घूमते हो ना, तो तुम बहुत लोगों को एलिनिएट करते हो। जो बहुत लोग चाहेंगे अरे यार वो कैसा ही आदमी है, क्या रस्टिक आदमी है, क्यों उससे बात करना है, सो ऑन। बट देयर विल बी अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल दैट विल कम टू नो द रियल यू, ठीक है। और उससे फायदा ये होगा कि तुम्हें वैसे ही लोग तुम अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे रियल यू को पसंद करते हैं। तो क्या होगा ना कि तुम्हें रोज उठ करके नाटक करने की जरूरत नहीं होगी, तुम यही रह सकते हो, इट्स ओके मैं यही हूँ, मतलब तुम मुझसे कहीं भी मिल लो मैं यही रहूंगा। तो मेरे दिमाग में नहीं होता है कि हाँ मुझे प्रिटेंड करना है, और वो प्रिटेंड ना करने की जो आजादी है ना, that comes at a cost, but I'm okay to pay that cost. Right, right. There's one line which said it's better to have haters for your real self than lover for your fake self. That's Yes, the best thing. Yeah. that is Right. great summarization. That is how I'd want to put it. Yeah. Okay. अगर किसी को रोहित श्रीवास्तव बनना है आज के टाइम में, and because you also wrote about Gen Zs and the way they work and all, right? और आज के टाइम पे we know there are so many tools coming up, बहुत सा strategy आ गई है, हर कोई एक नया thesis लिख देता है marketing को लेके, SaaS sales को लेके, right? So what exactly they have to do? What is the fundamentals? Forget about tools, forget about strategies. Fundamental पे क्या workout करना पड़ेगा? पहले तो रोहित श्रीवास्तव बनने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी टेकन, फिगर समथिंग आउट फॉर योरसेल्फ। you can never beat me at my game, you can only create your new game and beat me there। तो पहले तो वो है, बिकॉज मैंने ऑनेस्टली बहुत लोगों की बहुत सारी चीजें देख, एक एक जो चीज है ना, थोड़ा सीरियस हो जाता है मामला, बट आई थिंक दैट्स नीडेड टू बी शेयर्ड, कि ये मैं बहुत ज्यादा ऐसे गुरुओं की बात सुनता हूँ ना, सुनता नहीं हूँ, बट नवल रविकांत की मुझे एक बात बहुत पसंद आती है कि whenever you envy someone, ask this question to yourself, अपने आप से ये पूछो कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ एक्सचेंज करोगे, और अगर उसका जवाब ना है तो तुम्हें पता है कि तुम वो आदमी नहीं बनना चाहते। तो एक तो वो बात है, आई एम श्योर यू डोंट वांट टू एक्सचेंज माय एंटायर लाइफ, ठीक है। तो अपना फिगर आउट करो, बट उस चीज में ही तुम्हारा जवाब पड़ा हुआ है। आई विल टेल यू, जो एक बहुत मिस्टेक करते हैं ना, जो मैं यंग लोगों को देखता हूँ, और मैं आई एडवाइस अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, जो आते हैं लोग मुझसे पूछते हैं कि करियर में यहाँ अटके हुए हैं, क्या करें क्या नहीं। इनफैक्ट आई यूज्ड टू रन दिस फ्री कंसल्टिंग कॉल बिफोर ये अपना क्या है, टॉप मेट वाज अ थिंग। मैं ऐसे फ्री में ही करता था, मैं आज भी फ्री में ही करता हूँ, थैंकफुली टचवुड जरूरत नहीं पड़ी है मुझे बच्चों से। खैर एनीवेज, तो हाँ, तो उसमें जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है ना, कि लोग, एंड ये स्कूल्स की प्रॉब्लम है, हमारे जो अच्छे स्किल्स है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमारे जो C- वाले स्किल्स हैं उस पर दिन रात काम करते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि ना, हम सारे स्किल्स में B+ हो जाते हैं, क्योंकि A स्किल्स पे हमने मेहनत नहीं की तो अपने आप डिटोरिएट हो गया कि B+ हो गए, C- वाले पे बहुत मेहनत की तो वो इंप्रूव हो गया, B+ हो गए, तो हम पूरे ओवरऑल B+ प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है। जबकि एक्चुअली में क्या करना चाहिए कि हमें B+ सॉरी जो A वाले हैं उन पे इतना मेहनत करना चाहिए कि वो A++ हो जाए, और C- वाले पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई मुझे C- नहीं आता, जैसे मुझे पेड एड्स लाने नहीं आते, I can only run it to a limited budget which is say $5,000 $10,000 a month, उसके बियॉन्ड मेरे हाथ में मेरी औकात नहीं। I have never done it, it does not come naturally to me, but give me product marketing for a multi-billion-dollar company, I know I can do a better job than most people on this earth। ये कॉल मैंने पिछले 6-7 साल पहले लिया था, and it changed my career। So if I have to give you a framework, बैठो अपने साथ आराम से, जाओ कि जहां पे भी हो, बैंगलोर में हो तो कबन पार्क जाओ, HSR में किसी कैफे में बैठो, बॉम्बे में हो तो मरीन ड्राइव पे जाओ, एक नोटपैड लेके जाओ, हो सके तो मोबाइल पे मत करो, but really ask this question, that what are you really good at, and can you be better than everybody that you know in that particular thing, and you'll get your answer and start working on it। That's your mantra to uh, skip, hop and jump through this career growth। otherwise भाई B+ होके रह जाओगे, उतने ही पैसे कमाओगे, उतना ही ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर यू वेयर यू आर सीइंग दिस एंटायर AI SaaS हेडिंग टुवर्ड्स, क्या एंड गोल दिख रहा है इसका, क्या दिख रहा है? एंड गोल ये दिख रहा है कि कमिंग 3 years की बात करते हैं, ज्यादा दूर का नहीं हाँ, सोचते हैं, आने वाले 3 साल नहीं की नहीं, बात करते हैं। 3 years की भी विजिबिलिटी नहीं है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बंडल मारता नहीं हूँ,
बट थोड़ा प्रेडिक्शन मोड में अगर जाए तो मैं ये बोलूंगा कि अभी हमें ये भी नहीं पता है कि कितने पार्ट्स ऑफ द बिजनेस वर्कफ्लो ऑटोमेट होंगे, बट 3 साल बाद बहुत सारे ऐसे इनएफिशिएंसीज हैं जो हमारे वर्कफ्लोज में क्रीप इन कर चुके हैं पिछले, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर यूसेज के बाद ये इनएफिशिएंसी ज्यादा क्रीप की हैं, क्योंकि ऑब्वियस इनएफिशिएंसीज जो थी वो सारा सॉफ्टवेयर ने पूरा कर दिया था, ठीक है। लेकिन हमने ये अपने जीने का तरीका बना लिया था, जैसे पेटावी की बात बोल, तो हमने ये जीने का तरीका ही बना लिया था कि 5 अलग अलग टूल्स तो चाहिए सिंपल रिपोर्ट रन करने के लिए। आपको डेटा वेयर हाउस चाहिए, आपको एक स्नोफ्लेक चाहिए, आपको एक डीबीटी चाहिए, आपको एक टैब्लो चाहिए, पता इन द एआई वर्ल्ड यू डोंट नीड इट, ठीक है। तो ऐसा वाला जो पैटर्न है ये अक्रॉस वर्कफ्लोज तुम्हें दिखेगा, एंड वो धीरे धीरे कोई ना कोई टूल आकर के उस चीज को सॉल्व करेगा। सो 3 years फ्रॉम नाउ what we'll have is the fundamental way of how business workflows happen will change. People will still stack the same value, but a very higher efficiency powered by either direct AI agents or workflows powered by AI, or using AI in bits and pieces of that workflow. ये जो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि सारा कुछ AI एजेंट हो जाएगा। इफ यू सी द इवोल्यूशन ऑफ AI एजेंट, सबसे पहले को पायलट था, को पायलट के बाद AI इंटरफेस आया, AI इंटरफेस के बाद AI एजेंट आया। इनफैक्ट इट विल रिमेन लाइक दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये तीनों को एग्जिस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ वर्कफ्लो दैट यू आर यूजिंग। Perfect. Thank you so much, Rohit, for being here and sharing so much knowledge. Glad कि आपको टाइम मिला हमारे साथ बात करने का, and looking forward in future कि एक बार और हम बात करेंगे after certain time. ऑफ कोर्स प्रतीक, बहुत बढ़िया लगा इतने खुल करके बात करने। वैसे तुम्हारे सवाल वहां तक ले जा पाए मुझे जहां पे मैं शेयर कर पाया, तो आई अप्रिशिएट कि तुम इतना अच्छा रिसर्च करके आए और इतनी अच्छी बातें हम कर पाए, एंड आई थिंक इट वाज वेल वर्थ द टाइम फॉर मी। आई डोंट नो सुनने वालों को कैसा लगेगा, बट Thank you so much.